guys, good morning. Welcome to PAD Studies. In our channel, today I am going to teach you the human reproduction. The human reproduction, as we know, reproduction is very essential process because the living organism give birth to the young ones of the same kind. And in case of human beings, if the reproduction process does not take place, the species does not go to continue, and the generation after generation the human being does not produce same kind of organism, and the population become constant. So the giving birth to the young ones of the same kind is the process of reproduction. So the reproduction can be defined as the process of giving birth to the young ones of same kind, that is the similar kind, is called reproduction. It means it is the process in case of living organism, in case of human beings, the process of giving birth to the young ones of same kind is called reproduction. The living organism like begets like and give birth to the young ones of same kind. In case of human beings, humans are sexually reproduced. So the process of reproduction in human beings is sexual. Means in case of human beings the sexes are separate. They reproduce by the process of sexual reproduction, means involvement of two gametes takes place. दो अलग अलग गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ह्यूमन बींग्स के केस में सेक्सेस आर सेपरेट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, टू गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. द वन इज मेल गैमेट and the other one is female gamete, which is called gonads. So the involvement of two different gametes takes place in case of sexual reproduction, the male gamete and the female gamete. And the human beings are viviparous. It means they give birth to the young ones. They reproduce, giving birth to the young ones. Viviparous और ओविपेरस मीन्स एग लेइंग. तो ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, इसलिए ये विविपेरस है, यंग वंस. So the sexual reproduction takes place by the involvement of the two different gametes, that is the male gametes and female gametes. The male gametes or male gonads, female gametes or female gonads. The male gamete is the male sex cell, that is the testis, and female gamete is the female sex cell, that is the ovaries. So there are two types of gametes involved in case of sexual reproduction. So the male gamete is consist of the male reproductive system, and the female gamete is consist of the female reproductive system. So now the first one is the male reproductive system. Male reproductive system and the female reproductive system. The male reproductive system
system. Male reproductive system consists of the different organs, that is, the consist of the following organs. In case of the human beings, male reproductive system, consists of the following organs. The first one is a pair of testes, a pair of sex gland, called testes. The second one is ducts, that is the accessory ducts which help in the process of reproduction. The main sex organ, the primary sex organ in case of the male reproductive system, is a pair of testes. The secondary sex organ, that is the accessory glands like prostate gland, seminal vesicles, Cowper's gland, that is the Bulborothian gland. These are the three glands which helps in the process of reproduction, the accessory glands. Third one is the ducts, that is the vas deferens, and the fourth one is male genitalia. Male genital organ, that is the copulatory organ. Copulatory organ is the penis, so the male genitalia. So the human reproductive system consists of the accessory glands, duct system, and male genitalia. So these are the different organs. Now we should start with the primary sex organ, the pair of sex gland, that is called testes. So the primary sex organ is the testis. In case of human beings, the important organ is a pair of testes. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है टेस्टिस. टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल रीजन में एक पाउच के अंदर जो है रहता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम. इस स्क्रोटम के अंदर जो है टेस्टिस होता है. अभी हम लोग एक टेस्टिस को बनाए हैं, इसी तरह से जो है दूसरे स्क्रोटम में, थैली में भी टेस्टिस होता है. ये एब्डोमिनल कैविटी बिलो आउटसाइड द बॉडी होता है, बाहर होता है. सो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जिसके केस में जो ये टेस्टिस है जो इंटरनल होता है, तो उसको हम लोग मतलब इनसाइड द बॉडी होता है, वो बाहर से दिखता नहीं है. इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के केस में जो है ये टेस्टिस जो है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन की तरह विजिबल होता है. और यह एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये फिट रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम. ये बॉडी के बाहर ह्यूमन बींग्स जो जैसा हमने बताया कि एक्सटर्नल, हमारे केस में एक्सटर्नल टेस्टिस है. बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी के अंदर टेस्टिस रहता है, बाहर से विजिबल नहीं होता, उसको इंटरनल टेस्टिस कहते हैं. आप बताइए एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल्स जो है इसका एलिफेंट है. एलिफेंट के केस में जो होता है वो टेस्टिस इंटरनल होता है, वो दिखता नहीं है. तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स के केस में, लेकिन वो एक्सटर्नल विजिबल है. और जो स्क्रोटम के अंदर होता है, स्क्रोटम क्या करता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 2 से 2.5 डिग्री कम करके रखता है यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर से, इस रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में. यानी ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर रखता है, बिलो द बॉडी टेम्परेचर यहाँ का रखता है.
which helps in the formation of the sperm. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस क्या है मतलब फॉर्मेशन, और स्पर्म मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोड्यूस करना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा एक रोल है इसका, टेस्टिस पे एक और काम करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, यानी ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ बिहेव करता है। सो टेस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये सिक्रीशन ऑफ स्पर्म भी करता है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह है। साथ ही साथ ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसको सेक्स हार्मोन कहते हैं, जो मेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यानी कि मुस्टैच आना, जो है कि मुस्टैच आना, बियर्ड आना। साथ ही साथ जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ड्यू टू विच द मेल कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द फीमेल इन फीमेल, सो दैट इज द सेक्स हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस। तो टेस्टिस का ये दो इंपॉर्टेंट काम है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड द रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। So it is the main important organ of the reproductive system, male reproductive system. A pair of testes है, एक लेफ्ट टेस्टिस है, एक राइट टेस्टिस है, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान ये स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, जहां यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर स्क्रोटम में होने के कारण, अब ये स्क्रोटम क्या करता है, जैसे स्क्रोटम जो है ये टेस्टिस को, हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिन में बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो ये थोड़ा आउटसाइड बॉडी बिलो हो जाता है, थोड़ा नीचे हो जाता है, लेकिन जाड़े के दिन में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के करीब ले जाने के लिए ये थोड़ा ऊपर की ओर हो जाता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच इज मेड ऑफ मसल्स से मिल करके बना है। टेस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड, चूंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इसको हम लोग यूनिट कहते हैं, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए उसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भी कहते हैं। थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को देखते हैं। ये टेस्टिस जो है मेल का बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन। वो टेस्टिस का एक जनरल स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में हमने लिया है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। जो ये टेस्टिस है, एक का भी बात करते हैं, ऐसा तो एक पेयर होता है। इसमें सबसे फर्स्ट जो आउटर कवरिंग ऑफ जो लेयर होता है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है? द फर्स्ट आउटर लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद जो इसके अंदर की तरफ जो होता है वो बहुत सारा लोब्यूल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है वो एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए टेस्टिस। तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो है होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, जिसको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, इट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। सर्टोली cells. These Sertoli cells provide nourishment to the, these are the Sertoli cells. ये भी Sertoli cells है, ये भी Sertoli cells है, ये भी Sertoli cells है।
और ये सर्टोली सेल्स जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, किसको, स्पर्म को भोजन प्रदान करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। सो द सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिकुलर लोब्यूल, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सर्टोली सेल्स होता है, 1 to 3 सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है इस टेस्टिस के अंदर। फिर ये जो स्ट्रक्चर सर्टोली सेल्स से निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टस। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टस, RECTUS, ट्यूबुलाई रेक्टस। और इस ट्यूबुलाई रेक्टस जो है, और इसको रेटेड टेस्ट ट्यूबुलाई रेक्टस, इसको जैसा हमने कहा, ये ट्यूबुलाई रेक्टस जो है ये नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बनाता है और इससे जुड़ जाता है आपका रेटेड टेस्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटेड टेस्टिस, और ये एक नेटवर्क बनाता है। इससे जो है आपका स्पर्म रिलीज होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म रिलीज होता है, और ये स्पर्म जो है रिलीज होने के बाद ये आता है सर्टोली सेल्स में, और ये रिलीज होकर के सर्टोली सेल्स से नरिशमेंट लेने के बाद यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं इपीडिडाइमिस। इट इज कॉल्ड इपीडिडाइमिस विच टेम्पोररी स्टोर्स द स्पर्म, और ये टेम्पोररी स्पर्म को स्टोर करता है। और इस इपीडिडाइमिस से एक लॉन्ग ट्यूब स्पर्म डक्ट का, दैट इज द भास डिफरेंस का निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं भास्य इफ्रेंसिया और स्पर्म डक्ट विच कैरी द स्पर्म, एंड यहां से ये ले जाने के बाद जो है ये पेनिस को देता है, विच गिव्स द स्पर्म टू द पेनिस, जो हमारा स्ट्रक्चर पेनिस का है। ये फिर आगे यूरेथ्रा बनाता है और फिर ये मस्कुलर स्ट्रक्चर पेनिस बनाता है, और ये है यूरेथ्रा। यहाँ पर जो है आपका लेडिंग सेल्स है, LEYD, लेडिंग सेल्स, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये लेडिंग सेल्स बनाता है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये स्पर्म का फॉर्मेशन करने के बाद जो है ये नरिशमेंट देता है आपका सर्टोली सेल्स। द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड द स्पर्म इज रिलीज्ड which is temporarily stored inside the epididymis, and epididymis से कनेक्टेड है आपका स्पर्म डक्ट और भास डिफरेंस जो एसेसरी डक्ट जो है, और इस एसेसरी डक्ट को हम लोग आगे चल के देखते हैं। इस आप जैसा डायग्राम में हम लोग देख पाएंगे, एक सिंपल डायग्राम जो है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग बनाएंगे। In the simple way, with the help of the diagram, now we are going to understand about testes. A pair of testes होता है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, मूत्र का थैली जो यूरिन को स्टोर करके रखता है। इधर से आ रहा है पेयर ऑफ यूरेटर, और नीचे जो है आपका यहाँ पर है हमारा सेमिनल वेसिकल्स, जो सेमिनल वेसिकल्स नीचे की ओर जो है यहाँ पर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, 2 सेमिनल वेसिकल्स होता है, दोनों भास डिफरेंस की तरफ। क्योंकि भास डिफरेंस को जो है वो सेमिनल वेसिकल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। तो सेमिनल वेसिकल्स जो है वो अपना सिक्रीशन रिलीज करता है इन द लॉन्ग डक्ट स्ट्रक्चर, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। जो एसेसरी डक्ट्स है उसमें है ये भास डिफरेंस, वहां से निकलता भास डिफरेंसिया और ज्वाइंट करके भास डिफरेंस बनाता है एपिडिडाइमिस से। ये एपिडिडाइमिस है जो टेस्टिस में जो आपका ये टेस्टिस हुआ, इस टेस्टिस में स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, एंड नाउ दैट स्पर्म इज केप्ट इनसाइड द टेम्पोररी इनसाइड द एपिडिडाइमिस,
और ये एपिडिडाइमिस से रिलीज होते हुए स्पर्म डक्ट और vas deferens इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट बिकॉज इट कैरी द स्पर्म, इसलिए इसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो ये स्पर्म डक्ट जो है आपका, फिर यहाँ पर जो है आपका बुल्बोरेथियल ग्लैंड है जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड और बुल्बोरेथियन ग्लैंड भी कहते हैं, बुल्बोरेथियन ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। और यहां पर है आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो टेस्टिस है, दूसरा जो है वो एसेसरी डक्ट में, हमारा एसेसरी डक्ट में जो इंपॉर्टेंट डक्ट है वो है vas deferens, vas deferens, epididymis, ये एसेसरी डक्ट जो है vas deferens का काम क्या है? टू कैरी द स्पर्म, स्पर्म को कैरी करना, एंड इट ऑल्सो एड्स द सिक्रीशन और receive the secretion of the seminal vesicles and prostate gland and the bulborethian gland, that is the Copper's gland। इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन को ये लेता है vas deferens और epididymis से रिलीज होकर के vas deferens और स्पर्म डक्ट में जाता है। दूसरा जो है आपको हेल्प करने के लिए तीन ग्लैंड है, तीन ग्लैंड में सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल्स। तो अगर शॉर्ट में हम लोग कहें तो सेमिनल वेसिकल्स का रोल क्या है? तो seminal vesicles provide nutrition to the sperm when it flows inside the vas deferens। तो ये seminal vesicles जो है वो रिलीज करता है आपको फ्रुक्टोज, that is the प्रोटीन, ये ऐड करता है। साथ ही साथ ये सिक्रीशन में अपना फ्रुक्टोज डालता है, प्रोटीन डालता है, बाइंडिंग प्रोटीन डालता है, जिसकी मदद से जो है ये अपना न्यूट्रिशन लेता है आपका ये स्पर्म जो है। उसके साथ साथ जो दूसरा ग्लैंड है हमारा वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। द प्रोस्टेट ग्लैंड, मूत्र की थैली जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, ओल्ड एज में जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है का मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो लूज हो जाता है, उसके कारण प्रोस्टेट ग्रंथि में बहुत सारा डिजीज भी होता है, यूरिन का रिलीज होना बंद हो जाता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशन देता है, जो स्पर्म जब ये कैरी होता है आपका इस स्पर्म डक्ट के अंदर, तो वो लिक्विड मटेरियल डिस्चार्ज करता है जो इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, जो इसके कारण ये स्विम करने में उसको मदद करता है। ये अपना लुब्रिकेंट देता है, लुब्रिकेशन को हेल्प करता है, हेल्प इन द लुब्रिकेशन। साथ ही साथ ये कैल्शियम आयन का भी सिक्रीशन करता है, कैल्शियम आयन का सिक्रीशन करता है, और कुछ प्रोटीन देता है, एंजाइम्स देता है, जिसकी मदद से जो है मूवेबिलिटी बढ़ता है, एंड लुब्रिकेशन के कारण हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। और ये एल्कालाइन सिक्रीशन करता है जो कि एल्कालाइन होता है। उसके साथ साथ तो कॉपर्स ग्लैंड है हमारा तीसरा ग्लैंड जो है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड का क्या काम है? कॉपर्स ग्लैंड जो है या बुल्बोरेथियन ग्लैंड जो है, ये भी अपना एल्कालाइन सिक्रीशन रिलीज करता है, जो कि स्पर्म को, जब ये कॉमन पैसेज है पेनिस से, जो हमारा कॉमन पैसेज है, स्पर्म भी रिलीज होता है, यूरिन भी रिलीज होता है। तो यूरिन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो उसका एसिडिक नेचर को बनाने से स्पर्म को डैमेज ना हो, उससे बचाने के लिए जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड एल्कालाइन सिक्रीशन सीक्रेट करता है, जो स्पर्म को लिंगर नहीं होने देता है, उसको मदहोश नहीं होने देता और उसको डैमेज होने से बचाता है। और अगर वो वेजाइनल के अंदर भी जाता है तो लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करे, और वो एल्कालाइन सबस्टांस होने के कारण स्पर्म को एसिडिटी से प्रोटेक्ट करता है। तो ये तीन ग्लैंड का सिक्रीशन था। और फाइनल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो है कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस, जो यहाँ पर पेनिस ओरिफाइस है, जो कि रिलीज करता है सीमेन को, सीमेन के रूप में रिलीज करता है हमारा
जब ये तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन ले लेता है स्पर्म, तो नाउ बिकम सीमेन। 2 से 3 ml सीमेन जो है, मिलीलीटर सीमेन रिलीज होता है एक बार जब पेनिस से सिक्रीशन होता है। तो पेनिस इज द लास्ट कॉपुलेटरी ऑर्गन या मेल जेनेटिलिया which helps in the copulation during the process of reproduction, and the penis releases the sperm inside the female vagina. So these are the reproductive system. These are the main reproductive system which is made up of different types of the main primary sex organ, testis, the ducts, that is the sperm duct or vas deferens, and the accessory glands like seminal vesicles, prostate gland and bulborethian gland, and the copulatory organ that is called penis. तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।